हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। बच्चों, हम लोग धीरे धीरे यहाँ आ गए। फोर्थ चैप्टर 12th क्लास का फिजिक्स का स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये जो बात करते हैं कि स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स हैं, काफ़ी बड़े बड़े हैं चैप्टर्स, और उनमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बेसिक्स बहुत सारे हैं। तो हमें इन चैप्टर्स को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, थोड़ा टाइम देना चाहिए इन पर, तो हम सही कर सकते हैं, इसमें कुछ अच्छा कर सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं। और इनको जब तक नहीं समझेंगे, हम आगे के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छी तरह हमें वहाँ भी छूटेंगे और नहीं समझ में आएंगे। तो फिर ये जो चैप्टर है जनरली डील्स विद मूविंग चार्जेस and relation between moving charges and magnetism. So both magnetic and electric properties, they are known for thousands of years. Okay, about 2000 ago people knew about this thing, electricity and magnetism, but they thought these were different, absolutely different phenomena. But actually in 19th century or 18th, after 18th century, in 1820 here, Oersted performed experiment, or accidentally he came to know what is there. He saw a deflection magnetic compass when it is placed near a current carrying conductor. So this was very remarkable observation to this Oersted. Okay, then certainly that was a turning point, that was a key point where I started, where electricity and magnetism, they are related, means people knew they are related, and after then, and many theories were developed. Okay, many observations were found in experiments, and many unifications came then. So on the foundation of this experiment, many scientists after then, as Maxwell, James Maxwell, Lorentz, Faraday, these all scientists worked with magnetic fields and electric fields, and they found many relations, many theories, and even after then electromagnetic waves and related concepts were discovered. And after then, science it jumped to very high levels in 10th 20th century, and foundation or ground for this jump was given by Faraday, Maxwell, Oersted, Lorentz, and Hertz. So these all are foundation stones of development of science, and you can see physics. So let us see what was the experiment of Oersted. Oersted experiment was what? He placed a magnetic compass near a current conductor, and he observed deflections, and he found that magnetic field is there, means on passing current through a conductor, something is developed around the conductor, something physical existence around the conductor, due to which a magnet gets deflected, or the influence under which magnet gets deflected, it was named then magnetic field. So magnetic field was nothing but magnet influencing field, and you can see two magnets interact each other, and again you can see a magnet gets influenced, gets deflected near, when it is placed near another magnet, means when it is placed in the magnetic field other magnet. So each magnet, it has
own field, that is magnetic field, and in the field of one magnet, other magnets experience force and torque, they get deflected, and magnetic interactions, they were known to people for a long time, but electricity and magnetism, they were unified. The efforts to unify these magnetic and electric properties, they started after the Oersted experiment. So, when Oersted had a current carrying conductor and placed a magnetic compass gets deflected, then he concluded that a current carrying conductor is associated with some magnetic property, means a current carrying conductor produces magnetic field. What did he observe? He observed that when current is in a direction, it produces magnetic field around it, and my direction of magnetic field is what? It is along the circle perpendicular, it is along the tangent to the circle which has plane perpendicular to the conductor and is centered at the conductor. Okay. So, magnetic field due to a current carrying conductor is along the tangent to the circle which has its plane perpendicular to the conductor and centered at the conductor. So, this magnetic field is what? Okay, like this. Its direction is like this. Okay, and so the magnetic field is directed like this. So, this is direction of magnetic field, and its direction is towards, will it be towards left or right? So, it is along the right-handed screwdriver's driver rule. Okay, when a screwdriver rotates here clockwise from this side, and the screw moves forward. So, if the screw moves in the direction of current, in the direction of flowing charges, then its direction of rotation is along the magnetic field produced by the conductor. Or magnetic field due to a current carrying conductor is directed here, it is along the tangent to the circle which is centered at the conductor, and it has its plane perpendicular to the conductor like this. So, you can imagine many concentric circles around the current carrying conductor which represent magnetic field lines, and these magnetic field lines are what? These magnetic field lines like this. So, this is direction of magnetic field around the conductor. As we go away from the conductor, this strength of magnetic field decreases, and its direction again obeys the same right-handed screwdriver's rule, okay, or right hand thumb rule. Okay, if you imagine to hold the conductor like this, if current is flowing in this direction from right to left here, then if thumb points the direction of current or flowing charges, then fingers wrap around the conductor in the direction of magnetic field. So, this is right hand thumb rule, means thumb, suppose this is conductor, thumb is pointing in the direction of current, then fingers are wrapping this conductor in the direction of magnetic field, and these lines are distributed symmetrically around the conductor. They get rarefied as we go away from the conductor, and these lines are found up to infinity, means range of this magnetic field is infinite. So, physically let us see experimentally this effect. Okay. Let us move to the apparatus where we can verify this Oersted experiment, okay, or we can also see what was seen by Oersted, okay, just 200 years before. Okay. So, let us see, this is 2020 and this happened in 1820. So, let us see.
ओके बच्चों, तो हेलो बच्चों, मैं जो आपको अभी बात कर रहा था कि ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट मीन्स करंट कैरिंग कंडक्टर क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। ये चीज़ बताने के लिए आपको ये सेटअप पर ले आना चाह रहा हूँ कि आप ये देखिए, हम यहाँ से वेरीफाई करेंगे कि हाँ करंट चलने पर वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है। और मैग्नेटिक फील्ड होने की पहचान क्या है? व्हेन इफ देयर इज मैग्नेटिक फील्ड इन एनी रीजन, सर्टेनली अ मैग्नेट प्लेस्ड एंड फ्रीली सस्पेंडेड will get deflected, or you can say when a magnet is free to rotate or move, it is placed in that field or that region, it will deflect. तो ऐसा ही देखना है, मैग्नेट क्यों डिफ्लेक्ट होगा? मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट होगा तभी होगा। तो अगर कहीं मैग्नेट डिफ्लेक्ट हो रहा है तो निश्चित है कि वो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर होगा ही होगा, तभी होगा डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आइए एक सेटअप करंट फ्लो कराने के लिए और साथ में उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता हुआ दिखाने के लिए। तो देखिए हमारा जो सेटअप है बहुत सिंपल आपको दिख सकता होगा। यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना, सामने सब दिख रहा है सेटअप, एक रियोस्टेट दिख रहा है, एक अमीटर दिख रहा है ना, डिजिटल मीटर है ये अमीटर, और बैटरी एलिमिनेटर एक दिख रहा है, और साथ में कुछ स्टिक जैसा है। एक्चुअली स्टिक दो जगह हम ये एक्चुअली सेटअप क्या कर सकते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है, ये भी इससे डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए बनाया गया था। तो वो भी दिखा सकते हैं इसी से। तो ऐसे में हम वही चीज़, इसका यूज़ हम यहाँ भी कर ले रहे हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये चीज़ वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो हम उसको कोशिश करेंगे वो भी दोनों चीज़ इससे आपको शूट कर लूँ इसे या दिखा दूंगा। तो ठीक है, आइए पहले सेटअप में देखते हैं। हमारा जो टारगेट है वो कि मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर प्रोड्यूस होता है, ये दिखाना है। तो आइए देखते हैं, एक एक को देख लेते हैं। ये देखिए ये डिजिटल मीटर है, डिजिटल अमीटर बोलते हैं इसकी, जो करंट डिजिटल डेस्क स्टैंड मीटर करके लिखा हुआ है। जो इसकी रेंज है वो क्या है, 20 एम्पियर तक है, और ये डिजिटल है, इसको ये देख सकते हैं। ये देखिए क्या है, ये बैटरी एलिमिनेटर यानी बैटरी सोर्स की जगह यूज़ करते हैं। ये इसके जो आप पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल देख रहे हैं ना, जो रेड है वो पॉजिटिव लिखा हुआ है वहाँ पर, ये पॉजिटिव, और यहाँ पर देखिए नेगेटिव लिखा हुआ है जो ब्लैक है। 3 एम्पियर मैक्सिमम करंट इससे आप ड्रॉ कर सकते हैं। और ये जो नॉब है इसमें बोल्ट आप बदलने के लिए आउटपुट वोल्ट से क्या है 2, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट ऐसा करके आप चेंज कर सकते हैं। और इसके जो नेगेटिव और पॉजिटिव देखिए वायर कहाँ कहाँ आए हुए हैं ये भी देख लीजिए। ये जो पॉजिटिव से जुड़ के वायर ये आया है, ये देखिए कहाँ आया है, आप इसको फॉलो करेंगे तो ये यहाँ पर आया हुआ है, देख रहे हैं, ये जुड़ा हुआ है किससे, अगर एक व्यू में इसको अगर दिखाएं तो देखिए ये यहाँ पर जुड़ा हुआ है इसके। तो एलिमिनेटर का पॉजिटिव अमीटर के पॉजिटिव में आके जुड़ा हुआ है, रेड इंडिकेट करता है पॉजिटिव को, ये हुआ। और अमीटर क्या होता है, सीरीज में जुड़ा होता है, तो इसलिए क्या हुआ, जो एलिमिनेटर के पॉजिटिव से आप कनेक्शन ले आए हैं, ये यहाँ पर इससे पॉजिटिव से जुड़ गया है, और ठीक है ना, ये पॉजिटिव से जुड़ गया है। फिर ये नेगेटिव से ले करके कहाँ गए हैं, देखिए यहाँ, ये नेगेटिव से आकर के एक वायर यहाँ आया हुआ है। और इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या किया, एक हुक जैसा बना दिया है, देख रहे हैं, एक हुक जैसा बस बना दिया है। पर ये तो यहाँ हुक बनाने की जरूरत नहीं थी, या सीधा वायर होता तो भी मैग्नेटिक फील्ड आता, उसे वैसे ही प्रोड्यूस होता। कह रहे हैं ना ये मैग्नेटिक फोर्स वेरीफाई करने के लिए भी था, तो एक वायर को, करंट कैरिंग वायर को हिलने डुलने के लिए भी हम स्कोप देना चाह रहे थे। तो ये यहाँ पर ये बना हुआ है, इसलिए इस हुक में देखिए, ये बहुत ध्यान से देखिएगा तो ये हुक जैसा बना हुआ दिखेगा। और इसमें एक वायर यहाँ पर सस्पेंडेड है, यहाँ पर देखिए ये जो वायर है ना ऐसे हिल रहा है, ये वायर देखिए ये हिल रहा है, हुक जैसा यहाँ लटका हुआ ना ऐसा, हाँ ये है। और यही वायर ये कहाँ से, नेगेटिव टर्मिनल है, ये देखिए नेगेटिव से, सॉरी ये पॉजिटिव की ओर से होके आया हुआ है,
ये एलिमिनेटर के पॉजिटिव से होके आया हुआ है। देखिए ये यहाँ पर अमीटर में, अमीटर के पॉजिटिव से निकल करके यहाँ आ गया, फिर एमीटर के पॉजिटिव में आया है, फिर नेगेटिव टर्मिनल से, हालांकि नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव की ओर से होके आ रहा है, तो ये यहाँ आ गया। और यही वायर कहाँ तक गया, देखिए ये इसके नीचे जो ये रखे हुए हैं आप देखिए क्या है, ये मैग्नेटिक कंपास है। इस समय ये ट्रू नॉर्थ की ओर या मैग्नेटिक नॉर्थ की ओर पॉइंट कर रहा है। आप जानते हैं मैग्नेटिक कंपास भी एक छोटा सा मैग्नेट होता है, ये घूम सकता है कि नहीं, इधर उधर। और यही वायर देखिए कहाँ तक गया है, ये अगला देखिए यहाँ पर भी हुक जैसा बना हुआ है, इसी पर ये लटका हुआ है वायर, ये देख रहे हैं, ये यहाँ पर ऐसे लटका हुआ है ये वायर। और यही वायर कहाँ गया है, देखिए ये रियोस्टेट में से ऐसे निकला है। तो रियोस्टेट क्या करता है, बस ज़्यादा नहीं, कुछ करंट कंट्रोल करने के लिए होता है। तो ये हालांकि हम यहाँ पर एलिमिनेटर में ये नॉब है, इससे भी हम वोल्ट चेंज करके और करंट चेंज कर सकते थे, लेकिन ये थोड़ा सा और ग्रेजुअली चेंज कर सकते हैं रियोस्टेट से। तो रियोस्टेट में देखिए, रियोस्टेट में एक ये चीज़ जुड़ा हुआ है, जो नेगेटिव एलिमिनेटर का जो नेगेटिव आया हुआ है यहाँ से कहाँ जुड़ा हुआ है, ये रियोस्टेट में आया हुआ है। देखिए ये यहाँ पर रियोस्टेट से के एक नीचे वाले एंड पर जुड़ा हुआ है। ये जो रियोस्टेट का जो वायर है ये वाला ना, ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना वायर लपेटा गया, ये इसी में आकर के बैटरी से ये देखिए क्या हुआ है, ये जुड़ा हुआ है यहाँ पर, है ना, कहाँ से, एलिमिनेटर के नेगेटिव से। एलिमिनेटर का नेगेटिव यहाँ पर है, उससे ये जुड़ा हुआ है यहाँ पर, ऐसे आ गया। और ये यहाँ से, और अगर ध्यान से देखेंगे तो ये इस पार से इस पार दिख रहा है ना एक वायर, ये जो ब्लैक वाला वायर यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पर बहुत रिंग रिंग जैसा यहाँ पर दिख रहा है, वही वायर कई राउंड लपेटा गया है। और वही बीच में देखिए क्या हुआ है, एक जो कांटेक्ट, ब्रास का कांटेक्ट दिख रहा है इसमें, ठीक है, ये जो कांटेक्ट है ब्रास का वही रगड़ता रहता है और उससे कनेक्ट ये रॉड हो जाती है। ये रॉड जो रेक्टेंगुलर सी रॉड, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की रॉड है ना, ये कनेक्ट होती है। और वो रॉड कहाँ गई है, ये यहाँ पर गई है। और ये जो आपको मिला हुआ है ये टर्मिनल, ये आया हुआ है कहाँ, दूसरे वाले एंड पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो ये नेगेटिव टर्मिनल यहाँ आया हुआ है, कह सकते हैं कि बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल यहाँ हुआ है। और पॉजिटिव कहाँ से आया हुआ, पॉजिटिव अमीटर में से होते हुए, यहाँ से होते हुए ये इस एंड पर आया है। तो ये आप देख रहे हैं, उस ये एंड नेगेटिव है और ये एंड पॉजिटिव है, ठीक। तो इस तरह जुड़ गया। अब हम देखते हैं कि इसमें जो करंट ऑन होगी तो क्या होगा, ये इंडिकेटर जलेगा, यहाँ पर ये इंडिकेटर जलेगा। एक तो ये देखिए ये ग्लो करेगा, और यहाँ पर इसमें डिफ्लेक्शन भी होगा। अभी देखिए वो इंडिकेटर भी देखते रहिएगा, और ये डिफ्लेक्शन भी होगा करंट जैसे ऑन करेंगे तो। देख रहे हैं, हमको लग रहा है कि दिखना चाहिए इसको। और ये हम ऑन कहाँ से कर रहे हैं, हम यहीं से इसको, एक तो देखिए यहाँ पर ये देखिए ये बटन है ना, यहाँ पर हम ऑन कर रहे हैं। ये आप ध्यान से देखेंगे तो मालूम हो जाएगा। हाँ ये देखिए इंडिकेटर भी देखिएगा, वो भी देखिएगा, देख रहे हैं इंडिकेटर भी ग्लो कर रहा है। और यहाँ पर मैग्नेटिक कंपास भी क्या हुआ, ये टर्न हुआ है। अब देखिए ये यहाँ पर थोड़ा सा और ऊपर से देखिए तो क्लियर होगा। मैग्नेटिक कंपास को फिर देखिए और इंडिकेटर को देखिए, हटा हम ऑफ कर रहे हैं, देख रहे हैं वो अपने वापस डायरेक्शन में अपने आ गया, ओरिजिनल डायरेक्शन में जैसे था, नॉर्थ की ओर पॉइंट कर रहा था, नॉर्थ की ओर आ गया। और ये हालांकि आप साउंड भी सुनेंगे, ये स्विच के ऑन ऑफ की तो उससे मालूम हो जाए कि ऑन हुआ ऑफ हुआ। और ये देखिए हम इस पर फोकस कर करके आपको ऑन होना और ऑफ होना दिखा रहे हैं। ये इसमें करंट देखिए ये है, और ऑन करेंगे तो देखिए हुआ ऐसे, फिर ये ऐसे आप कर दिया। तो ये जो जिस डायरेक्शन में रुक रहा है एक्चुअली वो डायरेक्शन क्या है, वो डायरेक्शन बिना करंट के, अभी करंट तो नहीं फ्लो कर रही है, तो ये एक्चुअली नॉर्थ है, जो मैग्नेटिक नॉर्थ होता है। और जो वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है वो भी आ जाता है, तो दोनों का रिजल्टेंट जिधर होता है उसी डायरेक्शन में जाके रुकता है। तो अभी
जो करंट इसमें है, देख रहे हैं, ये बहुत अभी ज़्यादा करंट फ्लो कर रही है। और ये अभी आपको अमीटर भी दिखा देंगे कितनी करंट फ्लो कर रही है। तो ये देखिए, फिर हम ऑन कर रहे हैं और करंट ज़्यादा फ्लो करा रहे हैं। देख रहे हैं, बहुत तेज़ी से डिफ्लेक्ट हुआ और चला गया उधर। वो ये कंपास नीचे रखा हुआ है और ये देखिए ये कितनी करंट है इसमें, ये कुछ दिखा रहा है आपको, है ना। तो ये वेरीफाई करता है, देखिए, है ना, डिफ्लेक्ट हो गया। तो ये वेरीफाई करता है कि ये क्या हो गया, करंट इसमें है। ठीक है, तो इस तरह से ये ऐसा हो गया। आपने देख लिया, हम इसी को कह रहे थे कि ये क्या है, ऑर्स्टेड ने इसी को शो किया था कि करंट चलेगी तो ये डिफ्लेक्शन होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और ये ऐसा कर रहा है। देख रहे हैं, ऐसा ही कर रहा है। तो अब इसको हम समझते हैं कि अब जान गए होंगे कि मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से होता है। साथ में 10th में पढ़े भी हैं आप। अगर इसको प्रेडिक्ट करना होगा तो बता सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड बता सकते हैं इधर वायर में, राइट हैंड थंब रूल अगर याद करें तो किधर है ये, अगर राइट हैंड थंब रूल आप याद करें तो ये आप देख रहे हैं किधर है, ये थंब की डायरेक्शन आगे की ओर होगी और फिंगर्स नीचे, मैग्नेटिक फील्ड इधर बता रहा है वो नीचे की ओर, लेफ्ट की ओर बता रहा है। तो अगर वायर के नीचे मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट की ओर है तो करंट किधर होगी, आगे की ओर होगी, इधर से, यानी थंब की डायरेक्शन में आगे, आप जिधर से देख रहे हैं उससे आगे की ओर करंट होगी, है ना। यानी ये करंट किधर चल रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव चलती ही है, जानते ही हैं। तो पॉजिटिव वाला एंड तो यही है, यहाँ वाला पॉजिटिव वाला एंड है, ये वाला जो यहाँ से निकला हुआ है, ये यहाँ से आया हुआ है, देखिए यहाँ से, तो ये पॉजिटिव एंड है, तो करंट उधर चल रही है। तो ज़रा आप राइट हैंड रूल को भी, आप थंब रूल को भी आप जान सकते हैं कि ये राइट हैंड थंब रूल कैसा होता है, यही होता है। ठीक, तो हम करंट ऑफ करते हैं, देखिए वापस से आ जाएगा। ठीक, कितना मोड़ के ले गया था उधर। तो इस तरह आप इसको देखिए। ठीक, और फिर चलते हैं आगे, आप आगे देखिए, ऐसे एक्सपेरिमेंट आते रहेंगे आपके सामने।